Good morning, everybody. Am I audible? Ritvik? Yes, sir. Just, Yes, sir. okay, fine. Just mention yes in the chat box so I can have an idea that I am audible. Put yes in the chat box. Yes, so I can get that majority of you are getting my voice. Okay, fine. Okay, fine. So let's start straightforward. That what we are discussing in the previous session, that if you want to learn advanced surveying subject, the basic fundamentals that should be clear regarding the surveying subject. So as this is advanced level, that means we are adding few points, more technical skills to this subject, right? So it is very necessary to be aware about the various fundamentals of the surveying subject. So right now I'm sharing a screen with you, and in that I'm showing you that what we have discussed in the previous session, right? So this is what we have discussed in the previous session, that first of all we need to understand the basic fundamentals that we have learned in the surveying subject. So number one, so if I'm giving a 2 points, then how we are going to measure the distance between 2 points? Second point, if I have two lines, what is the exact methodology to measure the horizontal angle between two lines, right? Now I am adding one more line and I am completing the figure. So how you are going to measure the area of any irregular figure, right? This is the third point. Then two fundamental principles of the surveying. Fifth point is scale, and sixth point leveling, reference lines, datum points, or benchmark. So these are the six basic things that you need to be aware about the surveying subject. So for the simplification, we have compared all these 6 points with mathematical formula. You can say mathematical operations. So if you want to learn a mathematics, you must aware about what is plus sign, what is minus sign, what is multiplication, and so on. So similarly, if you want to learn advanced surveying subject, you must be aware about the different fundamental concepts of the surveying subject, right? Now, चिराग बगड़ा, चिराग बगड़ा, चिराग, ओके फाइन। उमेश कुमार, यस सर। आप मुझे ये बताइए कि जो यस पहला वाला पॉइंट है आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। यस सर, ओके सर। What are the techniques? What are the terms that you require to explain the first point? यस सर, फर्स्ट टाइम एक 2 पॉइंट रहता है ना, तो सर उसे थर्ड पॉइंट निकल जाता है ऐसे ही। आप पहले उसे पढ़िए, 1 पॉइंट से ये क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए पहले। सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? हाँ, तो आप क्या बता रहे हैं? कैसे मेजर करते हैं बताइए।
Which are the methodologies? सर उसे मेजर कर सकते हैं वो चैन चैन सर्विंग से सर, हाँ, चेन या सर्विंग। डिस्टेंस उसे स्केल से सर। स्केल ओके फाइन। कैसे? सर स्केल होता है ना सर, वो चेन डायगोनल सर्वे स्केल जो है, और प्लेन स्केल सर। चेन सर्वे की प्रोसीजर बताइए। आनंद जोशी। યસ સર. हाँ, प्रोसीजर ફોર ચેન શેના સર્વિંગ માટે? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ। હા હા, એ તો ખબર છે. હા, તો એ ચેન સર્વિંગ માટેની પ્રોસીજર જે છે એ સમજાવો। વોટ ઇઝ સર યોર આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? એમાં ચેન સર્વિંગમાં સર આખી આપણે ચેનની એક માપવા માટે ઓલું શું કહેવાય આખી લાઈન હોય છે પેલા તો, એટલે એ આપણે શું કહેવાય ઓલું ગોઠવવાની અને પેલા તો સરખી રીતે કે આપણે જે વસ્તુ માપવાની છે ને ત્યાં સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ થી એને રાખવાની પછી. Okay, so what is this symbol I have drawn in your on your screen? કે A લખેલો છે, દેખાય છે? A is there and B is there. So what are these points? What is, or in other words, this symbol is for what in chain surveying? Delta. Is this a delta? Oh, Hope sir. huh? Main station, sir. Main station. When we, yes, the thing is that you need to keep in mind that when you are in mathematics, that triangle when I'm doing it is a delta, but when you in the civil engineering field, it is not a delta. You are wrong. It is a main station. You can see here dot is inside the triangle, right? So when what we are discussing, that you need to keep in mind. So this A and B are my main stations. And if you want to measure a distance between 2 points, which is A and B, right? So you require a chain survey. So I am asking about that point, right? So first point. Okay. So what do you know about the chain survey, Anand? ચેન સર્વિંગ તો આપણે પેલા સમજવા પડે. હા, એ જ એટલે જ તો વાત છે। તો ચેન સર્વિંગમાં કે આપણે ઓલું લાઈન મેઝરમેન્ટ આપણે કરી શકીએ એનાથી લાઈન મેઝરમેન્ટ પ્રોસીજર શું છે આપણે પ્રોસીજર? ઓકે, હું તમને હિન્ટ માટે એક આપણે બીજી સ્લાઇડ ઓપન કરીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે। Sir, can I explain? Yes, I will come back to you. I will come back to you. But let me get the idea from the Anand. હવે કઈ યાદ આવે છે આનંદ? આ શું છે? હા સર.
આમાં આપણે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ થી આપણે જે મેઇન પોઈન્ટ થી આપણે જે બધું માપવાનું છે ને એમાં આપણે પૂરા. ઓકે, ખુશી. યસ સર, આપણે ઓફસેટ કરીને એરિયા ફાઇન્ડ કરી શકીએ. થોડું એડિશનલ કરો એમાં. શું આપણે રાઈટ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ સમજાવો. એટલે સર આપણે ચેન સર્વરમાં કેવું હોય, આપણે પેલા મેઇન સ્ટેશન હોય હમ, ઈ લોકેટ કરીએ, પછી એની અંદરથી સબ સ્ટેશન ફાઇન્ડ કરીએ. એટલે આપણે સપોઝ કે મેઇન સ્ટેશન છે કે એક જે સૌથી મોટી લાઈન હોય જે સ્ટેશનને કનેક્ટ કરતી હોય એને આપણે ઓલી ડાયગોનલ લાઈન કહીએ. પછી એની અંદર ટાઈ લાઈન આવે, પછી બેઝ લાઈન આવે, ઈ વાળું. મેઇન સ્ટેશન, સબ સ્ટેશન, ઈ. So the point is, you must be aware about the basic fundamentals of the chain server. At least you know the procedure, right? So here what is it? It is, if you have a two stations like A and B, right? And if you want to measure the distance between A and B, right? Simply you just put a reference line, which is very important point. कि एक हमें एक ऐसी रेफरेंस लाइन चाहिए होगी जिसके बेसिस पे हम बाकी सारे डिस्टेंस मेजर कर पाए. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी के बीच हमने चेन बिछा दी, विच इज अवर रेफरेंस लाइन. लेट अस से व्हेन आई से द डिस्टेंस ए बी is equal to 20 meter, right? So what does it mean? That means at A you are 0, અહીંયા 0 છે, and here it is 20 meter, right? So what if when I say here is 40, so what is at B? Obvious, 60, because the distance between 2 points is constant here. So when I say, that means when I say AB is equal to 20 meter, you are starting from A. That means A is the reference point, right? So that I explained in the earlier phase, earlier semester. When I say BA is equal to 20 meter, that means you are starting from B. That means your reference point is B, right? You have started measuring from B to A. You are going in this direction from B to A, while in first case you are going in this direction. So this is a very important fundamental concept. I think still you need to work on that, right? So reference point or reference line is a very important in case of chain surveying, right? Second point, how you are going to measure the angle between two lines. Second point, how? I think we have done a practical at the campus. Who was there in practical? I think Kripal Singh Jhala is there in the practical. Jhala, Manan, Anand Joshi. Yes, sir. Ha. So can you explain how what we have performed? What is the procedure for that experiment? કે આપણે શું પ્રોસિજર કરી હતી ફિલ્ડમાં જઈને? કે યાદ નથી? ચાલા? Yes, sir. Sir, હા. કહું. હા હા પૂછું જ છું. મનન.
હા સર બોલો. ઓલા ટર્મ્સ એકદમ નહીં યાદ હોય, આપણે જે આખું એક્સપેરિમેન્ટ હતું ને એમાં આપણું જે ડિવાઇસ છે એના જે પ્રોપર ટર્મ્સ છે ને એ બહુ નથી યાદ. પણ આપણે જેટલું છે ને યાદ પેલા તો જે બે લાઈન, બે પોઈન્ટ હોય ને, જે ટ્રાયેંગલ ના બે પોઈન્ટ હોય ને, તેમાં એક પોઈન્ટ ને જોવાનું અને એનું રીડિંગ લેવાનું છે. અને પછી એનું રીડિંગ લેવાનું એટલે એના આપણે એંગલ કાઉન્ટ કરી શકીએ એમ. અને પછી ઈ જ રીતે બીજું રીડિંગ લઈને પછી એના એંગલ કાઉન્ટ કરવાના. અને પછી એનું આખું આપણે કહેવાય ને કેલ્ક્યુલેશન કર્યું એમ, કે એંગલ કેમ ફાઇન્ડ કરવાના એમ. ઈ આપણે આલ્ફા બીટા ક્વાર્ટર ને તરીકે. માંથી સર ઓલું આપણે કર્યું. હા ઝાલા, થોડું વધારે આપણે ક્લેરિટીની જરૂર છે. હા ઓલા આપણે મને સબસ્ટિટ્યુટ ખાલી તમે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ લિસન મી, તમે ખાલી મને એટલું જણાવો કે તમે કેમ્પસમાં આવીને આ પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરવાની શરૂઆત કેવી રીતે કરી? તમે સૌથી પહેલા શું કર્યું હતું એ મને કહો. 3 સર પોઈન્ટ પેલા લીધા જે હતા સર. હતું ને જસ્ટ વન બાય વન બાય ના ઝાલા, point નહીં. આઈ એમ આસ્કિંગ સર what પેલા we have આપણે આપણો ફિક્સ પોઈન્ટ સર સેન્ટર નો, yes. So first of all we have જ્યાંથી decided આપણે a O point here. Then what we have done? સર ત્યાંથી આપણને સર ઓલા ત્રણેય આપણી રેન્જિંગ રોડ હોય ને એ બરાબર દેખાવા જોઈએ સર. ત્યાંથી એ આપણે પોઈન્ટ લીધો હતો. Okay. So we have formed a triangle on the field by putting the ranging rods at the different locations. So first of all, we have marked a center point, right? So which cannot be moved. It is a fixed one. Then we have placed ranging rod at location A, location B, and location C. Likewise. Then the triangle is formed, and then what we have done, there is an imaginary line which is connecting the O point to A point. Similarly for O to B and O to C. Then we have measured the angles here. Let us say this is alpha, this is beta. બીટા ને ગામા. Yeah. Then we have checked that whether it is the summation of alpha plus beta plus gamma, is it a 360 degree? આપણે આ ચેક કર્યું હતું કે ભાઈ આપણે જે મેજર કરીને આવ્યા છીએ એ જે છે મેચ થાય છે. ठीक है, हमने ऐसा किया था कि इंटीरियर एंगल का जो समेशन है वो 360 डिग्री होता है. तो हमने चेक किया था कि हमारी कितनी एरर रह गई, ठीक है, मेजर करने में. सो दैट थिंग वी हैव लर्न इन द सेकंड पॉइंट, राइट? इफ यू आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट, you must have to clear that concept. Then and then you can easily understand the advanced surveying concepts and the theodolites, right? And whatever it is, you must have to clear that concept. Then and then you can easily understand the advanced surveying concepts and the theodolites, right? And whatever it is. Now, we will explain the third point. यस सर. संतोष, यस सर. हाँ आप बताइए. सर एरिया मेजरमेंट जो हमको इन लोग शेप के करना है, उसमें हम ये एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं सर, जो जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्लानीमीटर सर. ओके, प्लानीमीटर की मदद से हम मेजर करते हैं. ओके. और सर प्लानीमीटर में सर फर्स्ट पॉइंट को जो है फिक्स करके उनके बाद जो जो सर मेरा शेप है उस शेप पे उनको सर मूव करते हैं. ओके. और लास्ट में सर जो पहले हमको सर 0 कर देना होता है, उसके बाद मूव करने के बाद सर जितना भी उसमें रीडिंग होता है उससे हम एरिया मेजरमेंट कर लेते हैं सर. उसका एरिया मेजरमेंट कर लेते हैं सर प्लानीमीटर की मदद से. So this is the planimeter, you can see on your screen. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. जो सिंपल अपनी भाषा में याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रोसीजर जो है आपको याद रखनी होगी. ठीक है, आप देख सकते हैं अलग अलग फुट. ये हमारा प्लानीमीटर, हमने ये पूरा प्रैक्टिकल जो है हमने सीखा था कि इस तरह से हम सीट लेंगे. ठीक है, एंकर पॉइंट है, राइट, मैग्नीफाइंग ग्लास है, ट्रेसिंग आर्म है. ठीक है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, हमने रीडिंग लेना भी सीखा था. ठीक है, तो आप ये सारे फोटोग्राफ्स जो है
इट इज कनेक्टिंग विद द एडवांस सर्विंग। अब क्या था, सर्विंग में सिर्फ सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होते थे, इतना करो। लेकिन जब एडवांस सर्विंग में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगी। तो वो समझने के लिए आपको पहले जो आसान प्रक्रिया है, आसान जो प्रोसीजर है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल पूरा जो है ये परफॉर्म किया था। थिंक ठीक है, हमने कैलकुलेशंस भी किया था कि किस तरह से हम जो है इरेगुलर फिगर का एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, likewise. Okay, then fundamental principles of the surveying. Let me ask Rutvik Vaja. યસ સર. Other student Sir. can mute their mic. Other student બે can. ફંડામેન્ટલ જે પ્રિન્સિપલ ઓફ સર્વેઇંગ હે, એક તો હે ઓલવેઝ વર્ક ફ્રોમ હોલ ટુ ધ પાર્ટ. Okay. પછી બીજું હે કે આપણે બે લિનિયર મેઝરમેન્ટ લઈને પછી આપણે ત્રીજો આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ. એટલીસ્ટ આપણી પાસે બે હોવા જ જોઈએ મેઝરમેન્ટ. Okay. એમાં મને રિલેટિવ મેઝરમેન્ટ નો કોન્સેપ્ટ સમજાવો. What do you mean by relative measurement? રિલેટિવ મેઝરમેન્ટ એટલે સર આપણે ફિક્સ નહીં પણ આજુબાજુ તો એટલું તો હોવું જ જોઈએ કે તેની જે આપણે ત્રીજું મેઝરમેન્ટ આવે તે એની આજુબાજુ હોય. Yes, we are talking about these 2 points, right? I think visible. Yes, Now, sir. yes, explain the first figure, Prithvi. સર ફર્સ્ટ ફિગરમાં આપણે કીધું છે કે ઓલવેઝ વર્ક ફ્રોમ હોલ ટુ ધ પાર્ટ. તો આપણે પહેલા એક ટ્રાયેંગલ છે એમાં આપણે પાર્ટ પાડ્યા છે. એમાં આપણે અંદરમાં બે ટ્રાયેંગલ દેખાય છે. એક તો છે ટ્રાયેંગલ ABC અને બીજો છે ટ્રાયેંગલ MON. Okay. So this is our bigger triangle PQR, right? Outer triangle, you can say. Then we have a inner triangles. Okay. તો આનાથી ફાયદો શું થાય આપણને, પૃથ્વી? સર શું કામ આવું થયું? સર આપણે કોક એવી વસ્તુ થાય કે આખા એરિયામાં આપણે સર્વેઇંગ કે કંઈ પણ કરતા હોય તો ક્યારેક એવી વસ્તુ છૂટી જાય તો આપણે નાના નાના પાર્ટ પાડીને કરીએ ને તો આખું ગ્રાઉન્ડ પણ પ્રોપરલી આવી જાય અને આપણી પાસે મિસ્ટેકની કોઈ Chances of error is very less. Yes, very nice. Jainab? યસ સર. હા, ફર્સ્ટ જે ફિગર છે એમાં કઈ બાકી છે એડ ઓન કરવાનું? સર એમાં બીજી વસ્તુ આપણે હજી એક સારી વસ્તુ એમાં એ થઈ કે આપણે છે ને સર જાણે કે આ ફિલ્ડ છે તો હવે આપણે સપોઝ એમ વિચારીએ કે આપણે આમાં જે રીતે ફિગર છે એવી જ રીતે ટ્રાયંગલ શેપનું જ ફિલ્ડ છે પણ એની જગ્યા બહુ જ વધારે મોટી હોય ને સર તો આપણે એક પોઈન્ટ થી બીજા પોઈન્ટ સુધી આપણે એક સાથે ના કરી શકીએ ને સર તો આપણે આવી રીતે નાના પાર્ટ્સ પાડેલા હોય ને તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે આપણે પોઈન્ટ લોકેટ કર્યો હોય ને એનો મિડ પોઈન્ટ ત્યાં આપણે જઈને પાછું એનું કરી શકીએ ને તો આપણે વધારે રેલિવન્ટ મળે. આપણે આપણું જે શું કહેવાય રીડિંગ જે છે ને એકદમ પ્રોપર આવે ઈ જ. Okay. Just now try to Hello, sir. explain. Yes, હા. સર એનું એક્ઝામ્પલ સર દઈ શકું? હા. But at least you just try to explain it English or either in Hindi or in Hindi, right? English or Hindi. सर yes. सर उसका वन एग्जाम्पल है सर, पिज्जा होता है ना सर, उसका सरकमफरेंस सर बड़ा होता है तो उसकी वजह से सर हमको खाने में तकलीफ होती है तो उसको भी हाँ. डिवाइड कर देते हैं सर छोटे छोटे पार्ट में. Yes, that is तो the उसे key हमें concept. Yeah, simplified, very nice. आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए आप कंप्यूटर डिवाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, छोटी छोटी कीज होती है. मान लीजिए हमने कीज की जगह हमने एक पूरा सा बड़ा सा पेड रख दिया है ना, कीपैड जो आता है, जिसमें कोई छोटी छोटी कीज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, है कि नहीं?
उसके अलावा कोई एग्जाम्पल दे सकता है? इट इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। चौधरी, रोहित कुमार चौधरी। रितेश कुमार। हाँ सर। हाँ, आप बताइए कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल। तो कौन सा सर, क्या बोल रहे थे, किसका एग्जाम्पल सर? हाँ, ये प्रॉब्लम है ना, आपको थोड़ा यहाँ पे क्लास में रहो, इसलिए तो आपको मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए इसका एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे। ऑलवेज वर्क फ्रॉम वोल टू द पार्ट, आपने कभी ऐसा किया है? नहीं सर। कभी नहीं किया, अच्छा ठीक है। यस परमार, यस सर। आप बताइए। એટલે You applied the સર first fundamental principle. મીન્સ કોઈ મોટો એરિયા હોય તો સર એને આપણે નાના નાના ભાગમાં ડિવાઈડ કરીને એનો આપણે એરિયા ફાઇન્ડ કરી શકીએ. Okay. Zainab. Yes, sir. Yes, try to explain the second figure. Yes, sir. Sir, in this figure, we can say that we should always એટલે સર એટલે ટૂંકમાં એમ કહી શકાય કે કોઈ પણ એક हिंदी વસ્તુનો हिंदी will be આપણે better measure. क्योंकि Okay, sir. बाकी सारे भी समझ पाएंगे। सेकंड पॉइंट। Okay, sir. Sir, we can say that if we want to if we want to measure a shape, then we should at least have two measurements. Like if we are talking about triangle in this figure, then in this we in the figure which is named as A, we have two linear measurements. So with that we can find the perpendicular distance, hypotenuse. Right. And in So second one we have the સર perpendicular. હું ટ્રાય yes, yes. Just let her explain. Let her explain. We will come to you, Jala. So In any interesting points about these figures? Okay, that we are યસ સર હું ટ્રાય just a minute, just a minute. I'm coming to you, Jainab. Any Yes, sir. interesting things that you can explain about these figures? કે શું એક એવું આમાં ખાસ છે, આ 6 કે 5 ફિગર છે એમાં શું એક એડિશનલ છે અથવા તો શું આપણે એમાં નવું જાણી શકીએ? સર એમાં નવું તો આપણે એવી જ રીતે કે આપણે જો સપોઝ કોઈ પણ વસ્તુ ગોતવી હોય ને તેમાં આપણે સૌથી પહેલા મેક્સિમમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવાનું, બની શકે ત્યાર સુધી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવાનું તો આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ મેઝરમેન્ટ. તો સપોઝ આમાં આપણી પાસે બે આપણે આપેલા છે ને મેઝરમેન્ટ, તો આપણે જે ત્રીજું મેઝરમેન્ટ જે ગોતવામાં છે ને એ આપણે બહુ જ સહેલું પડે. ઓકે, ઝાલા. આગળ કરું સર એક્સપ્લેન આ બધા? ઓકે, નો 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 નો, ઝાલા. એની સર ઇન્ટરેસ્ટિંગ? આનું એક એક્ઝામ્પલ દઉં સર? હા જી. हेलो सर। हाँ हाँ, यस यस, जस्ट कीप इट इन हिंदी, हिंदी यस और सर इंग्लिश। ये दूसरा पॉइंट कहना चाह रहा है सर कि हम एक न्यू स्टेशन लोकेट कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 मेजरमेंट पॉइंट से। मतलब हमें सर पहले रेफरेंस लाइन लेनी होगी। जैसे एग्जांपल सर हम हमारे कॉलेज से देता हूँ कि सर हमारा एक पॉइंट है सर हमारा मेन बिल्डिंग और दूसरा है सर हमारी लो बिल्डिंग। सर उन दोनों को सर हम पॉइंट लेके सर हम रेफरेंस लाइन लेके तो सर हम पीजी बिल्डिंग का लोकेशन है ना फाइंड कर सकते हैं सर। Yes, you can easily locate a third building, which you can consider as the center of the building, right? So that is the simple fundamental. You just have to observe the things around you and apply the principles of the surveying. You can easily apply, you can easily visualize also, right? So ये आपके आसपास ही होता है, आपको सिर्फ विजुअलाइज के ऑब्जर्व करके वहां पे अप्लाई होता है कि नहीं आपको ये देखना है। अगर ये थिंकिंग आपकी हो जाएगी
ठीक है, तो it will be very easy for not only for serving in advanced serving subject, it will useful for every subject, and the future endeavor that you are going to do in that also this will helpful. ठीक है, क्योंकि आप अपने आसपास क्या हो रहा है, अपने आसपास आप जो पढ़ रहे हो वो कहाँ अप्लाई होता है, वो आप देखना, एक बार आप सीख गए, वो नजर आप में आ गई, तो आपके लिए वो बाकी सारे बच्चों से, बाकी सारे आपके जो कलीग्स है उससे आप अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो यही जो है मार्केट में अभी चाहिए, कुछ यूनिक स्किल जो है आप में होनी चाहिए। ओके, वेरी नाइस। सो फर्दर ये हमने तीसरा पॉइंट समझा, सॉरी फोर्थ पॉइंट। देन स्केल, स्केल कुसाई, कुसाई हजारी। यस सर, यस सर। हाँ, आप मुझे ये फिफ्थ वाला पॉइंट आपको जो मालूम है वो मुझे बताइए। सर स्केल आपने જે हिंदी फील्डમાં में जो भी मोटा, हिंदी में सर भी जो सो फील्ड दैट में जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम स्केल की मदद से वो छोटे मेजरमेंट में हम ड्रॉ कर सकते हैं और उसको सर्वे कर सकते हैं, और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं सर उसको हम बड़े मेजरमेंट में दिखा के हम उसको भी सर्वे कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप? सर प्लान क्या मैप, होता है और मैप क्या होता है? सर प्लान कोई एक जगह का प्लान होता है, बिल्डिंग या हाउस, और ओके, मैप जो है वो कोई सिटी या कंट्री का होता है सर। ओके, सर હું ટ્રાય કરું? हाँ, say if you will actively participate in this discussion, it will very useful to you to understand the concepts of the advanced serving subject, right? Yes, you can explain. સર બે પ્રકારની સ્કેલ આવે છે, રિડ્યુસિંગ સ્કેલ અને સર એનલાર્જ સ્કેલ સર। Okay. સર રિડ્યુસિંગ સ્કેલમાં સર એવી રીતના હોય કે જેમ કે સર આપણે सर उसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारे बाहर कॉलेज के बाहर सर जो मोरबी रोड निकल रहा है सर, उसका सर हम जैसे कि एग्जांपल ले तो सर उसका 1 किलोमीटर हम हमारे ड्राइंग में सर 1 सेंटीमीटर से उसको सर हम ले सकते हैं आरएफ लेके सर। उसका एग्जांपल सर हम लेते हैं सर 1000:1 और वैसे। और सर एनलार्ज स्केल में सर ऐसा होता है कि जो हमारे पास कोई भी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि हमारा एक मिनट सर हमारे पास सर एक कंपास है सर, उसका सर हमें यहाँ सर कोई भी मैकेनिकल सर कोई भी टूल हो उसको सर हम एनलार्ज करके ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घड़ियाल का घड़ी का सर सुई का कांटा हो सर, उसको एनलार्ज करके हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक पॉइंट हमारे ड्राइंग में सर 10 पॉइंट के बराबर हो सकता है, क्योंकि एनलार्ज करेंगे ना सर उसको, इसलिए। That is the simplest method you can use is that अगर आपको 20 किलोमीटर का रोड पेपर पे ड्रॉ करना है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप 20 किलोमीटर की लाइन वाला जो जितना पेपर साइज है उतना लेंगे और एग्जैक्टली उतना प्लेस करेंगे। सो आप क्या करेंगे उस टाइम, उस 20 किलोमीटर रोड को हम अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि जो पेज में वो कंप्लीटली आ सके। तो हम क्या करेंगे उस टाइम, स्केल ले लेंगे। तो स्केल में हम क्या करेंगे कि हम मान लीजिए 20 किलोमीटर जो है उसको हम बोल देंगे कि 20 किलोमीटर आप इतना छोटा हो जाओ कि आप 1 किलोमीटर जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर बन जाए हमारे पेज में। ठीक है, सो ऐसा हम करते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है पेज पे हमने ड्रॉ किया है वो हमारा 1 किलोमीटर है ग्राउंड पे। ठीक है, तो वो जो स्केल है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो मैप जो है, प्लान जो है, वो कोई भी ऐसा मैप हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई प्लान हो ही नहीं सकता जिसमें स्केल ना हो। ठीक है, इवन आप गूगल मैप भी यूज कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप जूम करते जाते हो गूगल मैप में, वैसे वैसे
आपके गूगल मैप के बॉटम कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में, वहां पे एक स्केल होती है, वो भी अपने हिसाब से एडजस्ट होती है। सो दैट इज द फंडा, राइट, कि स्केल के बिना कोई मैप नहीं हो सकता। ठीक है, तो अल्टीमेट थिंग इज यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द डिफरेंट स्केल्स एंड प्लान एंड मैप, राइट। जो हमारा हाउस होता है, घर जो होता है आपका, उसका प्लान होता है, ठीक है। आपके घर का मैप कभी नहीं होता, आपके घर का प्लान होगा। लेकिन अब आप लार्जर एरिया को एक छोटे से पेज में मतलब एडजस्ट करना चाहे, ठीक है, ड्रॉ करना चाहे, तो वो बन जाएगा आपका मैप। मान लीजिए गुजरात है, तो गुजरात का मैप होगा। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि गुजरात का जो है वो प्लान है, ठीक है। सिमिलरली आप बिहार भी ले सकते हैं, तो बिहार का है वो क्या हो सकता है, मैप हो मैप। सकता है। हाँ, बिहार का मैप हो सकता है, बिहार का प्लान नहीं होता। सिमिलरली आप नेशनल लेवल पे बात करें, इंडिया का मैप होगा, इंडिया का प्लान नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आप मैप में जो है वो आपको ब्रॉडर व्यू देता है कि जो नेचुरल जो आपके अवेलेबल है, ठीक है, फीचर्स, जैसे कि यहाँ से यहाँ रिवर जा रही है, ठीक है, तो उसकी लेंथ जो है वो मेन कंसर्न नहीं रहेगा, लेकिन जियोमेट्रिकल पोजीशन इज इम्पोर्टेंट इन अ मैप। जबकि प्लान में अगर आपका ब्रिज का प्लान है, आपका घर का प्लान है, तो उसमें एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि ये रूम कितनी साइज का है, ठीक है, विंडो की साइज क्या है, वो आपको प्लान में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। एरिया छोटा मिलेगा प्लान में, लेकिन डिटेल ज्यादा मिलेगी। मैप में क्या होता है, एरिया ज्यादा मिलता है, ज्यादा एरिया के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन आप डिटेल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप रोड जा रहा है उसका कहां से कहां जा रहा है वो आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन रोड की विड्थ कितनी है, हाँ, उसमें रोड के साइड में जो शोल्डर है उसकी विड्थ कितनी है, वहां पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, तो स्ट्रीट लाइट जो है वो उसके पोल का डायमीटर क्या है, वो आप जो है मैप में से नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज लेवलिंग। સર કહું यस। સર સર ઓલું પ્લાન ને एक સર એ मिनट, આપણે एक લાર્જ मिनट। એરિયા લાર્જ સ્કેલ માં થાય અને મેપ વ્યૂ સર આપણે સ્મોલ સ્કેલ માં થાય. ઓકે, જસ્ટ એ મિનિટ, વોટ અબાઉટ અધર્સ? ચલો બીજું કોણ સર ટ્રાય કરશે આના સિવાય? એક્ટિવલી જેટલા લોકોએ કહી દીધું એના સિવાય, મિત કવાર, મિત, કારણ કે જેટલા લોકો ડિસ્કશનમાં છે, જેટલા લોકો સમજે છે, એ તો એ ડોન્ટ કે સર હું આ વસ્તુ કહીશ, પણ બાકી બધા ચલો, મિત, પાર્થ કક્કડ, સર એક પોઈન્ટ કહું હું હજી. ઝાલા, આઈ વિલ કમ બેક ટુ યુ. હા, કહો. સર પ્લેન સ્કેલ અને ડાયાગોનલ સ્કેલ. યસ, પ્લેન સ્કેલ એન્ડ ડાયગોનલ સ્કેલ. ઓકે, સર ધેટ વી હેવ. પ્લેન સ્કેલમાં આપણે ડેસિમલ વાળા નંબર્સનો સ્કેલ ના કરી શકીએ અને ડાયાગોનલ સ્કેલમાં આપણે ડેસિમલ વાળું જે હોય ને એને પણ આપણે મેઝરમેન્ટ લઈ શકીએ. ઓકે, ઓકે, ફાઇન. યસ, ચાલા. સર સ્કેલ હોય સર એને સર ઇટ ઇઝ ધ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ ધ પ્રિપેરેશન ઓફ પ્લાન ઓર મેપ સર. હમ. અને सर स्केल નું सर फॉर्मूला आरएफ નું सर फॉर्मूला થાય सर उसका होता है डायमेंशनिंग ऑफ ड्राइंग अपॉन डायमेंशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट सर लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ. Okay, okay, fine. Then leveling. Now I'm asking somebody else. सर रितेश कुमार, हाँ। हाँ सर हम लोग स्केल को ऐसे अपनी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि हम किसी ड्राइंग का लंबाई बढ़ाते या घटाते हैं उसको स्केल कहते हैं, ये कह सकते हैं. हाँ, बिल्कुल, आप ऐसे ही सकते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब आप जहाँ बैठे हो वहां पे जो विंडो है वो हाँ एज इट इज आप पेपर में ड्रॉ नहीं कर पाओगे, जितनी लेंथ है, जितनी हाइट है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, उस विंडो को करके छोटा कर देंगे और अपने हाँ पेज में ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो आप कितना छोटा करते हैं, मान लीजिए 5 गुना कम करते हैं, 2 गुना कम करते हैं, तो वो आपका स्केल है। हाँ समझ में आई बात? हाँ सर वही कह रहा ठीक है। था कि अपनी लैंग्वेज में अगर आंसर देना चाहें ये वाला तो दे सकते हैं ना.
हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक है सर। ओके, अब यस परमार। यस सर। अच्छा, आप लेवलिंग के बारे में और बेंचमार्क के बारे में बताइए। बेंचमार्क क्या होता है? બેન્ચમાર્ક એટલે સર આપણે હે ને જ્યારે સર્વે કરીને हम्म, પછી જ્યારે માર્ક કરવામાં આવે, પછી જ્યારે પાછું તે જ જગ્યાનું સર્વે કરવું હોય ને ત્યારે એ બેન્ચમાર્કની મદદથી આપણે કરી શકીએ. બેંચમાર્ક શું છે? બેન્ચમાર્ક મીન્સ સર આપણે નહીં નહીં, એ મીન્સ તો તમે કહી દીધો. બેંચમાર્ક શું છે સર્વેઇંગમાં? એ એક રેફરન્સ પોઈન્ટ છે અથવા તો રેફરન્સ લાઈન છે, સમજ્યા મેં? કે જ્યાંથી તમે મેજર કરો છો. આના માટે મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે લેવલિંગનું તમારે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ જોવું હોય तो તમે रेलवे स्टेशन कोई पण रेलवे स्टेशन जाओ, ठीक है, आप कभी भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे एक येलो कलर का बोर्ड होता है जहां स्टेशन का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो उस स्टेशन के नाम के नीचे, ठीक है, वहां एक रेड कलर की एक लाइन लिखी होती है, ठीक है। तो वो जो लाइन है वो क्या इंडिकेट करती है? आपका जो है वो लेवल इंडिकेट करती है इन अ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। तो जैसे हाँ, यहाँ पे अभी सारा जो है आपको क्लियर कट हो जाएगा। यस, जैसे कि मान लीजिए आप ये इमेज देखिए, ठीक है। तो इस इमेज में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसलमेर का रेलवे स्टेशन का जो है वो है, ठीक है, बोर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, वो क्या है आप मुझे पढ़ के बताइए। यस परमार। यस सर। रेलवे लेवल अबाउट MSL 736 F પછી ટી કરીને સર નીચે ડોટ કરેલા 224 મીટર. તેનો મતલબ શું થાય? રેલવે લેવલ અબોવ ધ MSL કરતા 224 મીટર. MSL શું છે? बताइए, मालूम है तो बताइए। ખ્યાલ નથી આવતો. હવે આ વાંચો જે ફરીથી શું છે? समुद्र तल से ऊंचाई में सेल लेवल सी लेवल 214 થી 42 મીટર. તો હવે આ સમજ આવ્યું શું છે? હા સર. હા બોલો જે શું છે? સમુદ્ર તળ રહ્યું ને ત્યાંથી ઊંચાઈ એની 214 થી 42. સર હું ટ્રાય કરું એનું સમજાવું બેન્ચમાર્ક ડેફિનેશન ઇંગ્લિશમાં. Yes, you can explain. सर बेंचमार्क BM सर उसका शॉर्ट फॉर्म होता है BM,
is the term to define a permanent accessible point of known height above a datum to which the height of other point can be referred. Sir, ओके। Rose. Hello. हाँ हाँ, बताइए। हेलो सर, मैं बोल सर बेंच मार्क जो हम जो सर जहाँ से लेवलिंग स्टार्ट था उसको हम सर बेंच मार्क कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को बेंच मार्क बोलेंगे सर। ओके, तो जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि ये गुड़गांव का क्या है, आप ये बोर्ड में पढ़ के क्या इंडिकेट करता है ये? सर ये इसमें ये लिखा हुआ है कि समुद्र तल से ऊंचाई जो हमारा सर ग्राउंड है। बोलू सर? हाँ हाँ बोलिए। चला वेट ए मिनट, चला वेट ए मिनट। समुद्र तल यानी कि हमारा जो सर यहाँ का एरिया यानी कि जो गांव है उसका सर सबसे जो लो रहने का जो सतह है ना सर, उससे जो स्टेशन है उतना हाइट पे, सपोज 200 मीटर की हाइट पे वो उस पे लिखी होती है सर, समुद्र तल से इतनी हाइट पर है। तो कितनी हाइट है यहाँ पे आप पॉइंट इसे कंसिडर कर सकते हैं 214.42 मीटर। यानी कि जो गुड़गांव का जो रेलवे स्टेशन है उसकी पटरी जो है उसकी हाइट क्या है, कहाँ से? न्यू बॉम्बे हाई की समुद्र तल से। अगर आप न्यू बॉम्बे हाई जो है वहां 00 है, ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए जो बॉम्बे का जो मुंबई का जो समुद्र है उसको हम 00 बोले तो उससे ये गुड़गांव का रेलवे स्टेशन की पटरिया जो है 214.42 मीटर ऊपर है, ठीक है, समझ में आई बात? सो दैट इज व्हाट वी कॉल लेवलिंग, राइट? और एमएसएल अब जो है इसमें यस हाँ, सर, इसमें एक रेफरेंस क्या लेंगे सर? यानी कि अगर हम लेते हैं कि जैसे अभी आपने बताया सर कि मुंबई में एक जगह है जहां से हम उसका लेते हैं कि इतना हाइट पर है, उस जगह से रेफरेंस लेते हैं। तो लेकिन सर हम लोगों की तरफ जो देखते हैं वो 200 मीटर लिखी हुई है, उसको कैसे अति कर सकते हैं सर, एक्सप्लेन? जैसे हम लोगों की तरफ 200 मीटर की हाइट पर है समुद्र तल से। जी तो आप जो है मुंबई का जो लेवल है, मुंबई का जो ग्राउंड है, ठीक है, उससे आपकी जमीन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती आप 200 मीटर तक पहुंच गई। समझ में आई बात? यस सर। जैसे आप प्लान में देखते हैं इंडिया का मैप वैसा नहीं है। अगर आप जियोमेट्रिकली जियोग्राफिकली आप उसे देखें तो कैसा है, उबड़ खाबड़ वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए मतलब मुंबई हाई 00 है तो सबसे ऊंचा जो स्थान है वो हिमालय जो रीजन है हमारा, वहां पे कभी कभार 1 किलोमीटर या फिर 1.2 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर तक जाता है हाइट में, ठीक है। और नीचे आप साउथ में चले जाओ तो माइनस में भी चला जाता है, ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसा है नहीं कि प्लेन ही ग्राउंड है, कहीं जमीन ऊंची है कहीं जमीन नीचे है। तो हमने क्या किया कि हमने बीच में एक लाइन खींच दी जिसको हम 00 बोलते हैं, और वो जगह है न्यू बॉम्बे हाई, ठीक है। तो वहां से जब भी हम मेजर करेंगे तब हम 00 से मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप सर्वे ऑफ इंडिया का वेबसाइट जो है वो आप देख सकते हैं। समझ में आई बात? तो सर्वे ऑफ इंडिया में यही काम है कि ये जो फिगर फैक्ट एंड फिगर है, आपने थर्ड सेमेस्टर में नहीं, ये आपको बताया ही होगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, थोड़ा बहुत छूट जाता है, थोड़ा बहुत आप करते नहीं हो। तो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का यही काम है कि ये डिटेल प्रोवाइड करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन करके दी है आपको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं, गेट द इन्फो, राइट, देन ट्रेनिंग कहाँ होती है, कौन सा है, जो भी है, ठीक है। तो इनका इस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि इंडिया के अलग अलग क्षेत्र का जो है वो मैप बनाएंगे
और उसमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप ये भी रिफर करना आज, राइट। तो जैसे मैंने ये समझाया 6 पॉइंट्स, वैसे जो है ये 6 पॉइंट को आप कंपेयर कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, ठीक है। आप खुद ही अपना इंट्रोस्पेक्ट करो, आप खुद ही अंदर से आप पूछो कि ये 6 पॉइंट्स में से मुझे कितना आता है, ठीक है। और अगर नहीं मालूम है तो आप उसको समझने की ट्राई कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए। तो क्या है कि ये आपके 6 पॉइंट क्लियर होंगे तभी आप एडवांस सर्वेइंग जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल करना है, ठीक है, तो ये प्लस क्या है, माइनस क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन, परसेंटेज और इक्वल टू, ये आपको मालूम होना चाहिए। वैसे ही अगर आप एडवांस सर्वेइंग की प्रोसीजर समझना चाहते हैं, एडवांस सर्वेइंग के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो ये 6 पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे प्रतीक सर बताते हैं मोस्ट 1 जो है आपने अच्छे से नहीं किया है, तो मोस्ट 2 में आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, राइट। सो सिमिलरली जैसे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में मोस्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट के बिना जो है आप सिविल इंजीनियर बन नहीं पाओगे, ठीक है, कच्चे पक्के बनोगे। वैसे ही अगर आपको एडवांस सर्वेइंग पढ़ना है तो आपको सर्वेइंग जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। सो इट इज अ कनेक्टेड विद द सर्वेइंग सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, इट इज वेरी इजी टास्क। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप जो है कैलकुलेटर को डिग्री मोड में लिखिए। कैसा रखना है, मोड क्या होना चाहिए आपका कैलकुलेटर का, ओपन कीजिए कैलकुलेटर, और नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स आपको क्या करना है, कैलकुलेटर साथ में रखना है। आपके पास होगा ही साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे बड़ी स्क्रीन दिखा देता हूँ, ठीक है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कैलकुलेटर जो है एक मशीन है, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपने जो डेटा दिया है, आपने जो प्रोग्राम फीड किया है उसके हिसाब से आंसर देगा, ठीक है। तब आपको क्या करना है, अपना कैलकुलेटर जो है वो डिग्री मोड में रखना है। अगर आपको मालूम नहीं है मोड कहाँ से चेंज होता है, तो कैलकुलेटर में आप शिफ्ट प्रेस करिए और मोड प्रेस कीजिए, और जो है सेकंड वाला मोड जो है वो क्लियर कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको टाइप करना है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर है 31 डिग्री का सिंबल, वहां पे है सेकंड कॉलम में, उसको आप प्रेस कर सकते हैं। तो आपको टाइप ये करना है 31.624 और डिग्री प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको इक्वल टू प्रेस करना है। तो व्हाट विल बी द आंसर, आप मुझे बताइए फटाफट, कितने लोगों ने ये टाइप करके डिग्री प्रेस करके एंटर दबाया, फास्ट। फटाफट मेंशन यस इन द चैट बॉक्स। ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है कितने लोगों ने जो है यहाँ पे प्रेस किया, ये वाला मैंने जो आपको वैल्यू बताया, और व्हाट विल बी द आंसर, आपका आंसर क्या आया। So without a scientific calculator, advanced serving subject is not possible. So if you are not using the advanced serving, not using the calculator, scientific calculator, you must have to purchase it, and you can refer a video sent by Pratik sir how to use a scientific calculator. Okay, so that is there in our WhatsApp group is also there, so you can refer that video also, कि आपको अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पहले परचेज कीजिए, उसके बाद आपको वो यूज कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए एज ए इंजीनियर। तो लिंक जो है प्रतीक सर ने अभी भेज दी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, उनसे बात किया मैंने।
तो आप जो है वो रिफर कीजिए वीडियो, और अभी के लिए आप मुझे ये टाइप करके एटलीस्ट कोई सिंगल पर्सन तो मुझे आप आंसर दे दीजिए कि क्या आंसर आया। जस्ट टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। Just type this value and give me the answer. What is the answer? Am I audible to you? सर यस सर। हेलो आप बताइए तो सही, यस सर। कैसे चला सर जल्दी? मैं आंसर चैट बॉक्स में लिखो साधु सर। हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ। So I think 4 students have performed this task, right? So everybody has to do this task, and now question is that कि आपने क्या किया, कि आपने सिंपल क्या टाइप किया कि 31.624 डिग्री टाइप किया और इक्वल टू प्रेस किया, तो आंसर आपको क्या मिल गया? 31 डिग्री। आप यहां पे देख सकते हैं, राइट? 31 डिग्री और 37, आई थिंक 37, यस इट इज रॉन्ग, 37 एंड 26.4 सेकंड्स। तो कैलकुलेटर ने क्या किया, कुछ प्रोसेस किया होगा, ठीक है? तो वो प्रोसेस, ये आंसर आया कैलकुलेटर का, वो सही है कि गलत है, वो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो नाउ टास्क इज, आपको ये इक्वल टू प्रेस करने के बाद ये आंसर कैसे आया, ये आपको फाइंड करना है। समझ में आई बात? आपका टास्क क्या है अगले लेक्चर का? तो सभी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, सभी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगर आपको नहीं मालूम है कैसे यूज करना है तो लिंक दी गई हुई है ग्रुप में, उसको आप रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ये बताना है कि मैंने तो सर ये आंसर डाला 31.624, राइट, और डिग्री प्रेस करके इक्वल टू किया तो मुझे तो इतना लंबा आंसर दे दिया, क्यों? तो उसका आंसर आपको मुझे देना है नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि भैया ये आंसर कैसे आता है, उसकी मेथड क्या है। वो आप कहीं से भी सर्च करके, कहीं से भी फाइंड आउट करके, आप वो वीडियो रेफर करके आप मुझे, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। समझ में आई बात? तो यस सर। बेसिकली क्या हमने किया कि ये डेसिमल पॉइंट का जो डिग्री है उसको हमने डीएमएस यानी कि डिग्री मिनट और सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक लाइन कर देता हूं कि कैलकुलेटर ने क्या किया कि आपने एक डेसिमल वैल्यू उनको दी, उसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे डिग्री मिनट और सेकंड में। आई बात समझ में? यहाँ पे 3 है, राइट? सो तो वो कैसे आया, हाउ, वो चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो मान लीजिए अगर कैलकुलेटर गलत हो गया तो आप पूरी कैलकुलेशन आप गलत ही देंगे, ठीक है? लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कैसे आया। सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? तो इसके लिए जो ई कंटेंट है वो आपके पीपीटी में अवेलेबल है, आप रिफर कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे जाके कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट भी समझ सकते हैं, या फिर ये कैलकुलेटर वाला जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं, ठीक है? So this is it from our lecture. You can write down your roll number and you can leave the meeting, right? और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस, हेलो हाँ हाँ सर, बुक बनाना होगा सर, तो इसका बुक कितने बनाना होगा? हाँ इसका बुक सर, एडवांस सर्विंग का बुक बनाना होगा ना सर? हाँ हाँ, बनाना ही है। तो सर कितने बुक लग जाएंगे इसका? अभी आप लिखना तो स्टार्ट करो, एक बुक में लिखना स्टार्ट करो। सर ये सब्जेक्ट केवल आप ही नहीं पढ़ाएंगे सर? हाँ ओके।
ठीक है, तो आप बुक बना लीजिए, उसको आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाइए। सर હેલો હા, બોલો બોલો. સર મેં તમને કાલ ફોન કર્યો હતો ઓલું મારે ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં આપણે તમે લિંક મોકલી હતી ઓપન જ નથી થતી એમાં ટ્રાય અગેન જ બતાવે છે. ઓકે, હું એકવાર વેરીફાઈ કરી લઉં છું, બરોબર. હા સર મેં બીજા ફોનમાંથી કરવાની ટ્રાય કરી હતી પણ તોય એવું એવું જ થતું હતું. ઓકે, સેન્ડ મી ધ સ્ક્રીનશોટ્સ. ક્યાં પ્રશ્ન છે કે મને સ્ક્રીનશોટ મોકલજો, બરોબર, એટલે આપણે સોર્ટ આઉટ કરી લઈએ. ચલો, હા others સર can leave the meeting and join the next session.